Assalamu alaikum dear students, this is Amjad Niazi. I hope all of you will be very fine, and today I have comes up with the new topic, which is the oxidation state and rules of for assigning the oxidation state. Last time the topic which we have discussed or we have delivered was the difference between the oxidation and reduction, and daily life example of the oxidation and reduction, and there were some short tricks related to the oxidation and reduction. And right now we are going to discuss the oxidation state and rules for assigning the oxidation state. Oxidation state, I have told you people already that it is the apparent charge. Okay. So we are going to discuss it in detail, that what is this oxidation state and what are the basic rules and regulation for assigning the oxidation state, or if you have been given a compound, then how you will assign the oxidation state to the different elements. So let's start the topic. First of all, definition of oxidation state. How you will define the oxidation state? We can say that oxidation state is basically the charge an atom will have in a compound or molecule. It is the charge which an atom will have in a compound or molecule. For example, if we look toward the NaCl, then we comes to know that Na will have the positive +1 charge and Cl will have the -1 charge. Then what is this +1 and -1? This is basically the oxidation state. These are basically the oxidation state, which are shortly I am writing the OS. These are the oxidation state for the sodium and chlorine atom. For the sodium and chlorine atom. For example, we will take another example. Let's say this is the MgSO4, right? Then I will write here the +2 and I will write here the -2. Then what is this -2 and +2? These are basically the oxidation state of these elements. +2 is the oxidation state for the magnesium and -2 is the oxidation state for this whole sulfate ions. Then how I am assigning this oxidation state to these elements? Then this discussion will comes up from the rules. ये जो इसके रूल्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपके पास इसको हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं कि एक आपके पास मैग्नीशियम जो है वो मैंने उसको +2 दिया है और सल्फेट जो है उसको मैंने -2 दिया है। तो ये हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? ये हम इसके रूल्स में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रूल जो होगा आपके पास, ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है? आई विल राइट हियर, there are some rules for each and everything. Rules for assigning oxidation state. जो कि फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में आपको क्या देखना है? मैं कहता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0।
ठीक है, ये मैंने क्या चीज लिखी है, मैंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। देन यू मस्ट नो व्हाट आर दीज फ्री एलिमेंट्स। ये फ्री एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। अभी उनकी तादाद जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है क्योंकि उनकी डिस्कवरी हो रही है। तो हम कहते हैं कि वो जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्री एलिमेंट्स कहते हैं। द एलिमेंट विच आर नॉट इन द कंबाइंड स्टेट दीज आर टर्म्ड एज द फ्री एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जो कि कंबाइंड स्टेट में मौजूद नहीं होते उनको आप क्या कहते हैं, फ्री एलिमेंट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास आ जाता है जी सोडियम मेटल, राइट, Cl2। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल कि यही मैं मैग्नीशियम कह देता हूं। देन आपके पास आ जाता है सल्फर, आपके पास आ जाता है कार्बन। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल से आप उठाते हैं और वो आपके पास फ्री होता है, इट मींस व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म विद अनदर एलिमेंट, जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, उसको आप क्या कहते हैं, फ्री एलिमेंट कहते हैं। और हमेशा हमेशा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपके पास क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। यहां पे आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि मैंने Cl2 लिखा है, फिर मैंने ऊपर भी जीरो लिख दिया है। ऑल्दो दिस इज नॉट द फ्री एलिमेंट, दे आर कंबाइंड विद ईच अदर। दो क्लोरीन एटम जो है वो आपस में बॉन्डेड हैं। तो अगर आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं तो तब भी ये जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल की कुछ टाइप्स हैं, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक, वो इंशाल्लाह फर्दर एक सेपरेट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास क्लोरीन है Cl2 की फॉर्म में मौजूद होती है, तो ये हमेशा आपके पास क्या होती है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। नॉट ओनली दीज एलिमेंट, ऑल अदर एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट, their oxidation state will be zero. Next, oxidation state of simple ions is equal to charge on these ions। सिंपल आयंस कौन से होते हैं जी, यहां पे आपने ये चीज देखनी है। सिंपल आयंस मींस कि अगर आपके पास कोई एक एटम है, ठीक है, क्या होता है बच्चे कि एक एटम होता है, तो उस एटम के ऊपर जो प्रेजेंटली अपेरेंटली चार्ज मौजूद होगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वही चार्ज होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके पास, वही चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एग्जांपल बताता हूं कि लिथियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। आपके पास कैल्शियम है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। आपके पास एल्युमिनियम है, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। आपके पास फ्लोरीन है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये क्या है, सिंपल आयंस हैं। सिंपल आयंस मींस कि एक एक एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, चाहे उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 के चार्ज गेन किए हैं, चाहे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 गेन किए हैं, या उसने आपके पास किया है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपके पास क्या किया है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 चार्ज गेन किया है। तो दिस चार्ज विल बी देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल आयंस से सिंपली तौर पर एक एक एटम है उसका आयन बना हुआ है, तो उसकी जो अपेरेंट चार्ज होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं। क्या चीज कंसीडर करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं, ठीक हो गया। देन तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ जो लिथियम +1 में आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो आपने क्या करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। देन हाइड्रोजन +1 में आपके पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। कैल्शियम +2 में आपके पास कैल्शियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी,
आपने क्या कहना है जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। देन एल्यूमिनियम की भी इसी तरह क्या होगी आपके पास +3, और फ्लोरीन जो है वो आपके पास क्या है -1 है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये चीज देखी थी कि इट इज द अपीयरेंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, ये क्या था आपके पास चार्ज था, आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, व्हिच एन एटम विल हैव इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल या कंपाउंड में या फ्री स्टेट में भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये दो रूल हो गए। पहला क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। देन आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। नेक्स्ट आपके पास जो है हम ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस अगर आपके पास आ जाते हैं, क्या चीज आ जाती है, कॉम्प्लेक्स आयंस आ जाते हैं, तो उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ complex ions हाँ जी, कॉम्प्लेक्स आयंस की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को क्या चीज बताई है बेटा, कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस विल बी सम ऑफ चार्जेस on the individual atom, or it will be equal to the combined charges on the ions, कि जो आपके पास आयंस मौजूद होते हैं उनके कंबाइंड चार्ज के इक्वल होता है, या आपके पास क्या हो सकता है इंडिविजुअल एटम के जो चार्जेस होते हैं। तो इसकी एग्जांपल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल कि आपके पास मैंने इधर आप लोगों को पीछे बताया था कि MgSO4 के बारे में मैंने सल्फेट आयन को आपके पास क्या चीज बताई थी, -2 बताया था। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स आयंस ऐसे आयंस होते हैं जिनमें मोर देन वन एलिमेंट मौजूद होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फेट आ जाता है, कार्बोनेट आ जाता है, आपके पास क्या चीज आ जाती है, नाइट्रेट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। या आपके पास फॉर एग्जांपल के बाइकार्बोनेट आ जाता है, HCO3- आ जाता है। तो अब these are the basically complex ions which have more than one element, जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या चीज देखनी है कि इसको हम क्या करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास किस चीज की इक्वल होगी। तो मैं कहता हूं कि ये जो हमने इसके ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ होता है, ये जो चार्ज होगा ये आपके पास इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स आयंस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो आपके पास SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, आपके पास SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। इसी तरह आपके पास कार्बोनेट की भी क्या होगी, आपके पास -2 होगी, एंड नाइट्रेट की आपके पास क्या होगी, -1 होगी, एंड बाइकार्बोनेट की आपके पास क्या होगी, -1 होगी। अब ये होता कैसे है, ये जो है आपके पास आगे ग्रुप नंबर के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रुप नंबर की ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, उसमें ये चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इधर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास HCO3 नेगेटिव थी, HCO3 नेगेटिव की, तो हाइड्रोजन जो है वो आपके पास जो है वो पहले ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ए का मेंबर है। तो हमेशा फर्स्ट ए वालों की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 होती है। देन आपके पास कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, फोर्थ ए ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी आपके पास क्या होगी, +1 होगी। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होती है वो 6th ए ग्रुप का मेंबर है,
तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसकी जो है वो एक ऑक्सीजन एटम के लिए -2 होगी। तो यहाँ पे अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास HCO3 नेगेटिव है, सॉरी HCO3 -1 है, तो ये हमारे पास इसकी इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन की -1 कैसे आई है? हमने टोटल को रखना है 0 के इक्वल, ठीक है। और ये आपके पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए होती है +1, कार्बन के लिए होती है +4, एंड ये जो आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम है, एक की -2 होती है, तो हमने क्या करना है 3 × -2 करना है, ठीक है। तो ये आपके पास किस चीज की हो जाएगी, या अभी सबर करें आप इसको इक्विवेलेंट को 0 ना करें, तो अब ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, हाँ जी, प्लस का जो है ना वो आपने साइन डालना है दरमियान में, ठीक है। तो आपके पास ये +1 और +4 और ये आपके पास 3 × 2 -6 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगी +5 और -6, तो ये किस चीज की इक्वल हो जाएगा? -1 की इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स आयंस की कैलकुलेट की जाती है। इसी तरह कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट की भी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस चीज के बारे में, कंबाइंड एलिमेंट अगर मौजूद होते हैं तो उसके हवाले से कैसे हमने देखना है। तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंबाइंड एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन कंबाइंड must have their sum equal to 0, कि जब आपके पास एक कंपाउंड के फॉर्म में मौजूद होते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो उनका जो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, और वो जो आपके पास कंपाउंड जो ओरिजिनेट होता है उसका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होनी चाहिए? 0 की इक्वल होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, ताकि जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं अगर हम उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, उन सबको ऐड अप करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए उस टोटल कंपाउंड का जो है वो आपके पास जो कि अनचार्ज होता है, इनके कोई आयन वगैरह नहीं होता, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। फॉर एग्जांपल, तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंबाइंड फॉर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड होगा, ये मॉलिक्यूल होगा, ये आपके पास क्या होना चाहिए? देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जांपल आपके पास, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके पास आ जाता है HCl, तो HCl में H की क्या होती है आपके पास? +1 होती है, H क्या होता है आपके पास? +1, और Cl क्या होता है? -1। अब इस +1 और -1 दोनों क्या होगा आपके पास? 0 की इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज हाउ कि जो कंपाउंड आपके पास होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अगर उसके इंडिविजुअल एटम को की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या करें, ऐड अप करते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 की इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कहता हूं H2CO3 है, H2CO3 है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन 1 है तो 1 की +1 होती है, तो यहाँ पे आपके पास 2 है तो +2, देन आपके पास कार्बन है तो +4, और आपके पास एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? मैंने बताई थी अभी, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 है, 3 × -2 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? -6। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? +2 +4 +6 एंड -6 इज इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है कि इस तरीके से हमने इनकी क्या करनी है, टोटल जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 की इक्वल करनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप के हवाले से कि ये जो मैं आप लोगों को +1 -1 ये इस तरह के बता रहा हूँ, कार्बन की +4 होती है, तो ये इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं या इसके बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, ठीक है, कि जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप
फर्स्ट ए ग्रुप में आपके पास कौन कौन से आते हैं वो आपने पीरियोडिक टेबल से देखने हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट इनकी हमेशा जो होती है वो क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हमेशा फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, ये याद रखनी है। वो कौन सी है कि आपके पास हाइड्रोजन जो होती है, ठीक है, हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन व्हेन बाइंड टू इट्स ओन मेंबर। जब ये अपने ग्रुप वालों के साथ जो है वो क्या करती है, कंबाइन करती है, तो हमेशा क्या होनी चाहिए इसकी, उसमें उस केस में आपके पास ये हाइड्रोजन की क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देता हूं, आपके पास आ जाता है NaCl आ जाता है, KCl आ जाता है, NaF आ जाता है, ठीक है, NaI आ जाता है। तो ये क्या होगी आपके पास, हमेशा इसकी क्या होगी, +1 -1, इसकी क्या है, +1 +1 +1, हमेशा ये क्या हो जाती है, +1। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि NaH देखते हैं और दूसरा हम क्या देखते हैं, आपके पास HCl देखते हैं, तो HCl में जो हाइड्रोजन है उसकी क्या है, +1 है। लेकिन इस केस में आपके पास इसकी क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। ये एक्सेप्शनल है कि जब ये अपने ही ग्रुप के मेंबर जो हैं, जो पहला ग्रुप है उसमें आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, उनके साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगी तो क्या हो जाएगी, उसकी -1 हो जाएगी, और जो नीचे वाले होंगे वो उनकी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, इस केस में अगर आप देखते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन +1 है और क्लोरीन क्या है, वो -1 है। नेक्स्ट आपके पास हम बात करते हैं जी किसके हवाले से, सेकंड ए ग्रुप को अगर हम देखते हैं, ठीक है, सेकंड ए ग्रुप वालों के आपके पास हमेशा क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आपके पास इसमें सेकंड ग्रुप में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो आपको मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या चीज बताई थी कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट था, इसमें आपने देखा था कि मैग्नीशियम जो है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, आपके पास +2 है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, MgSO4 हो गया, ठीक है, देन आपके पास आ जाता है कैल्शियम सल्फेट हो गया, देन आपके पास मैं कहता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो इन केसेस में आपके पास क्या होती है, जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपके पास +2 एंड देन इस केस में आपके पास क्या चीज हो जाएगी, +2। तो ये आपके पास क्या चीज आ जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी आ जाती है। ठीक है, +2 वाली। देन अगर हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स की, तो उनकी भी आपके पास क्या चीज होती है, हमेशा थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या चीज, +3 होती है। क्या चीज होती है, +3 होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो थर्ड ग्रुप है उसमें जो मेंबर हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थ्रिलियम, ठीक है, ये इसके ग्रुप मेंबर्स हैं। तो आपके पास आ जाता है AlCl3 आ जाता है, इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसको आप एल्यूमिनियम क्लोराइड सिंपली बोल सकते हैं। तो इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है, और इनकी आपके पास -1 × 3, क्योंकि 3 एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो ये टोटल सम भी, और वो वाला हमारे पास रूल भी फॉलो हो रहा है कि आपके पास इसमें टोटल सम किस चीज की इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अगर हम देखते हैं फोर्थ ग्रुप की, ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप तक आपके पास जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती रहती है। सॉरी, ये फोर्थ ए ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इनकी क्या होती है, आपके पास +4 भी हो सकती है और फिर साथ में क्या कर सकती है, वेरी भी कर सकती है, और ये रेयरली होता है, ये बहुत रेयर केसेस के अंदर मौजूद होता है। देन आपके पास अगर हम देखते हैं किस चीज के हवाले से, फिफ्थ ए ग्रुप की, तो फिफ्थ ए ग्रुप में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि इनकी आपके पास, अब यहाँ पे याद रखना है कि फोर्थ के बाद आपके पास क्या होना शुरू हो जाती है,
प्लस माइनस में वेरी करना स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो इनकी या तो कभी किस में हो सकती है, +5 में हो सकती है, +4 इससे नीचे हो सकती है, या फिर आपके पास क्या हो सकती है, -3 -2 इस तरह की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो ये वेरी करती रहती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि ये कौन से एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है HNO3 की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो हाइड्रोजन का क्या होता है, आपके पास +1 होता है, तो ऑक्सीजन क्या है वो 3 है, तो एक की 2 -2 होती है, तो ये -6। तो हमने टोटल को 0 की इक्वल करना है, तो आपके पास इसका क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए, आपके पास +5 होना चाहिए। ठीक है, +5 नाइट्रोजन का, +1 हाइड्रोजन का, तो ये आपके पास इस केस में आपके पास इसकी क्या चीज हो गई है, +5 हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6 ग्रुप के एलिमेंट की, तो 6 के लिए आपने ये याद रखना है कि उनकी भी आपके पास आ जाता है 6 A ग्रुप एलिमेंट। तो इनमें आपके पास आ जाती हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इनकी आपके पास मोस्टली है, मैं अब बात कर रहा हूँ वो 5वें और फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप की जो था वो क्या था, अ लिटिल बिट वेरिएशन थी, बट आपने याद रखना है कि जब हम 6 ग्रुप की तरफ मूव करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है, तो इनके ऊपर मोस्टली जो होता है वो -2 का चार्ज होता है, या इनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या कर देते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि जी इधर मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन के हवाले से बताया, ठीक है। अभी अगर हम देखते हैं कि जी H2SO4, अच्छा एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे कि इनकी अगर प्लस की फॉर्म में जाती है तो प्लस की फॉर्म में ये +6 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 6 ग्रुप का मेंबर है, +6 तक भी जा सकते हैं। अब मैं एक ही फार्मूला लिखूंगा और उसी एक ही फार्मूला ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मैं आप लोगों को क्या चीज बताऊंगा, इसकी -2 भी सेटिस्फाई करके दूंगा और +6 भी सेटिस्फाई करके दूंगा। तो चलिए देखते हैं आपके पास कैसे आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास है जी H2SO4। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो 6 ग्रुप के मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, आपके पास आ जाते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो अब ये 6 ग्रुप के मेंबर हैं और इसमें एक चीज देखिए, आप इन दो को कंसीडर करना है आपने, आपके पास ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, जो दोनों क्या हैं 6A ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, 6A ग्रुप के मेंबर है। तो इधर आपके पास जो है वो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, आपके पास +2, एक का +1 होता है तो दो का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन मौजूद है तो एक का -2 होता है तो 4 है तो क्या हो जाएगा, आपके पास -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे सल्फर का क्या बनना है, सल्फर की क्या बननी है, +6 बननी है। देखिए एक ही ग्रुप के मेंबर है, एक ही ग्रुप के मेंबर है ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन एक +6 शो कर रहा है और एक क्या कर रहा है, आपके पास -8 शो कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन सी आपके पास है, 7th A ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम देखना चाहते हैं तो 7th A ग्रुप के एलिमेंट में आपके पास आ जाता है, इनकी हमेशा जो होगी, इनका प्लस वाला सीन नहीं है, ये याद रखना है, इनका प्लस वाला सीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास इनकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है, हैलोजन फैमिली है। 7th A ग्रुप में आपके पास आ जाती है हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। तो इनकी हमेशा आपके पास क्या चीज होगी, -1 होगी। क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी इनकी, -1 होगी, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, हमेशा ये -1 रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन फैमिली की। एक चीज और याद रखने, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, वो मेरे माइंड में भी आ गई है कि ऑक्सीजन की +2 भी हो सकती है, ऑक्सीजन की +2 भी हो सकती है, लेकिन कब, वो तब हो सकती है जब ये हैलोजन यानी कि OF2 में मौजूद होता है। ठीक हो गया बच्चे, कि यहाँ पे आपके पास अगर OF2 होता है तो इस टाइम पे ऑक्सीजन की, इसके अलावा ऑक्सीजन की +2 कभी भी नहीं होती। ठीक हो गया। एक चीज ये हो जाएगी, ऑक्सीजन थोड़ा सा वेरी करता है, ऑक्सीजन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इसके एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है, बस यही एक्सेप्शनल पॉइंट है, एक ये है और एक दूसरा भी है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का, वो भी एग्जांपल मैं आपको बता के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें -2 हो जाएगा इसका, और इसका क्या चीज हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा +2।
तो OF2 एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बाकी कहीं पर भी इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, हमेशा क्या होगी -2 होगी। वन थिंग दिस एंड अनदर थिंग जिसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको आप H2O2 कहते हैं, ठीक है, H2O2, अब इसमें इसकी क्या होगी, -1 होगी, इसमें इसकी क्या होगी -1 इंटू आपके पास क्या चीज हो जाएगी +2, अब ये हो जाएगा और ये -1 हो जाएगी। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं ऑक्सीजन के केस में कि आपके पास OF2 में इसकी +2 होती है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है, समटाइम्स इसके हवाले से जो है ना वो MCQs में आ सकता है। और इसमें भी आपके पास क्या होता है H2O2 में भी कि वो पूछ सकते हैं कि आपके पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन हैज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एग्जांपल वो आपको दे सकते हैं। आप लोगों ने मोस्टली पढ़ा हुआ होगा कि आपके पास ऑक्सीजन पर -2 शो करती है क्योंकि जिस भी कंपाउंड में देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप अगर आपने ये एक्सेप्शनल केस जो है वो स्टडी किया हुआ है तो तब आप उसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आप लोगों का 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो 7th A ग्रुप के एलिमेंट का मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो हैलोजन फैमिली है उन सब का क्या होगा, आपके पास -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रुप 8 एलिमेंट की, तो 8th वाले क्या होते हैं, बहुत ही शरीफ फैमिली है, बहुत ही नोबल जो है वो खानदान है, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। तो आपके पास इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आपके पास हमेशा 0 होती है। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट, दीज आर प्रेजेंट ऑलवेज, दे ऑलवेज आर प्रेजेंट इन द फ्री एलिमेंटल स्टेट। तो ये कुछ आपके पास जो थे ऑक्सीडेशन स्टेट थी और उसके रूल्स थे, तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। इन केस अगर आप लोगों को जो है ना कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फुली तौर पर गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो है वो मैं जो है अपना ईमेल आईडी एंड प्लस आपके पास जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं आपका अपने जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिलेक्टेंसी। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक और नई वीडियो के साथ जो है ना मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।